Hello friends, welcome to new student lecture video from Subhas Biology, and in this class we'll study about Ucharera bancrofti. So this is a filarial worm. आज वीडियो हिंदी में बनाने वाली हूँ. अगर कोई मिस्टेक्स हो तो प्लीज़ forgive me because I am not a native speaker of Hindi. So let's start about Ucharera bancrofti. So it is digenetic in nature. Digenetic means it has two hosts. Two hosts. First one is the definitive host and second one is the intermediate host. Definitive host is the human and intermediate host is the mosquito here. So definitive host means it completes its life cycle, its sexual life cycle in human, so it is called as definitive host, and it completes its asexual life cycle in mosquito, so this is called as intermediate host. So if we will see its mode of transmission, so first of all we will discuss about the life cycle which is completed in the mosquito. ठीक है, तो mosquito when bites to human, so along with its blood meal, ब्लड के साथ साथ वो माइक्रोफाइलेरिया को भी इन्फेक्टिव ह्यूमन से ले जाती है. कहाँ पे? अपने स्टोमक के अंदर में. तो अब माइक्रोफाइलरी कहाँ पे है? इन द स्टोमक ऑफ द मस्किटो. तो व्हाट इज दिस माइक्रोफाइलरी? सो माइक्रोफाइलरी इज द स्टेज ऑफ द दिस Ucharera bancrofti which is transferred from the human to the mosquito. ठीक है, तो माइक्रोफाइलरी क्या है, कैसा है, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे. उसका पैराग्राफ बिल्कुल लिख के दे देंगे. फाइलरी कहाँ पे है? माइक्रोफाइलरी अब है मस्कीटो के स्टोमक में. तो अभी क्या होगा ना, 2-3 घंटे में वो अपना सीथ निकाल लेगा. तो व्हाट इज मीन बाय दिस सीथ? सीथ मीन्स इट्स ए कवरिंग और ए आउटर लेयर टू प्रोटेक्ट दिस माइक्रोफाइलरी. तो अब जब स्टोमक के अंदर, मस्क्यूटो के अंदर वो सेफली पहुंच चुका है, तो उसको अब सीथ की कोई ज़रूरत नहीं. तो इट कास्ट अप इट्स सीथ, मतलब उसके सीथ को वो निकाल देता है, विच इज़ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सीथिंग. एक्सीथिंग, ठीक है. एक्सीथिंग मतलब उसका सीथ को वो निकाल देते. आफ्टर 4 to 17 आवर के बाद ये क्या करेंगे ना, इट विल नेक्स्ट फर्दर डेवलप और इट विल मूव टू द थोरेसिक मसल्स ऑफ द मस्क्यूटो. थोरेसिक मसल ऑफ द मस्क्यूटो इट विल रीच देयर एंड आफ्टर दैट इट विल वेट फॉर नेक्स्ट 2 days. मतलब अभी तक 24 घंटे, मतलब एक दिन नहीं हुए थे. तो आफ्टर 2 days इट विल move, it will mold and will form the first larval stage and that is the sachet shaped and it has a spiky tail. So अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ जाए कि तुम्हारे एक लार्वल स्टेज बताओ Ucharera bancrofti का जहाँ पे it has a spiky tail, तो then you have to write there this is the first larval stage, L1 larval stage of the Ucharera bancrofti. Next, after a week it molts once, twice and it will become the second larval stage, and after next week then it will become the third larval stage, and that is the most dangerous actively motile infective stage of Ucharera bancrofti, and that is the filariform larva. Okay guys, don't forget this larva. This is the most infective stage of the Ucharera bancrofti, that is the filariform larva. So this filariform larva move to the proboscis of the mosquito. The life cycle of the mosquito completes here. ठीक है. Now when it will reach the proboscis of the mosquito, it will wait for the opportunity. तो opportunity यहाँ पे क्यों चाहिए? उसको opportunity चाहिए. opportunity उसे अब क्यों चाहिए? क्योंकि ताकि when this infective mosquito will bite to next another human along with the blood meal, this infective stage of this Ucharera bancrofti or the filariform larva will move to the human and cause diseases there, because the adult form of this Ucharera bancrofti occurs in the human, the sexual life cycle. That's why it waits for the opportunity. इसी के लिए वो जो थर्ड स्टेज और द फिलरीफॉर्म लार्वा है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द Ucharera bancrofti, वो क्या करता है, प्रोबोसिस ऑफ मस्क्यूटो के अंदर वहाँ पे रह के वेट करता है ताकि अपॉर्चुनिटी मुझे मिले और मैं जाके वहाँ पे ह्यूमन को डिजीज़ कॉज करूँ. ठीक है, सपोज सोच लो कि एक मस्क्यूटो ने जाके, इन्फेक्टिव मस्क्यूटो ने जाके ह्यूमन को काट लिया. ठीक है, तो वो काट तो लिया, अलॉन्ग विद द ब्लड में उसके स्किन के ऊपर छोड़ दिया. कहाँ? किसको? फिलरीफॉर्म लार्वा को. तो दिस फिलरीफॉर्म लार्वा विल सर्च फॉर लिम्फेटिक सिस्टम एंड विल मूव टू द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी. सो व्हाट इज़ दिस लिम्फेटिक सिस्टम? जैसे कि हमारे अंदर में ब्लड है, ब्लड फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम, वैसे ही हमारे अंदर में लिम्फ भी है. सो हमारे बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक नोड्स हैं. So it will move to the lymphatic system and will move to the inguinal area or the genital area of the human body, and there
इट विल वेट फॉर 6 months टू बिकम एन एडल्ट वन, ठीक है। तो वहाँ पे वो जाके 6 महीने वेट करता है ताकि टू बिकम ए अडल्ट वन, एंड आफ्टर 6 months इट विल मेट। सोच लो, वहाँ पे एक दिन में नहीं हुआ था मस्कीटो के अंदर, वहाँ पे इतना सारा कुछ हो गया, बट इन केस ऑफ ह्यूमंस इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम, 6 months। कैन यू थिंक ऑफ दैट, 6 months, ठीक है। तो 6 महीने बाद दे रिप्रोड्यूस। सो एंड अनदर थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन दिस फिलैरिफॉर्म लार्वा एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी, जितने भी हमारे फिलैरिफॉर्म लार्वा वहाँ पे ह्यूमन बॉडी के अंदर गए होंगे उतने ही अडल्ट फॉर्म होंगे, क्योंकि ये जो फिलैरिफॉर्म लार्वा है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो जितने भी फिलैरिफॉर्म लार्वा ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री होंगे हैं, 5, 10, 15, 20 जितने भी, तो उतने ही अडल्ट वर्म वहाँ पे फॉर्म होंगे ह्यूमन बॉडी में। तो आफ्टर 6 months दे विल रिप्रोड्यूस टू रिलीज माइक्रोफाइलरी, ठीक है। माइक्रोफाइलरी यही है जिसको which is released from this adult worm. So एक female, you will be astonished, can't imagine, per day 50,000 microfilary is released from one adult female Wuchereria bancrofti. Can you imagine that? अगर वहाँ पे 10 होंगे Wuchereria bancrofti female, then 10 into 50,000, you can count that and comment me in the comment section, ठीक है। तो वहाँ पे इतने सारे अगर हो जाएंगे वहाँ पे माइक्रोफाइलर, तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली डिजीज़ कॉज करेंगे। तो वहाँ पे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के थ्रू हमारे ईओसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस, फागोसाइट, ये सब कुछ तो हैं, तो वो जाके वहाँ पे भी डिपॉजिट हो जाएंगे, वहाँ पे फाइटिंग वाइटिंग जो सब कुछ रहेगा वहाँ पे रहेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ना, दैट पार्ट ऑफ द एरिया विल गॉट इन्फ्लेम्ड और स्वेलन इन पोजिशन, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज एलिफेंथियासिस। द डिजीज़ इज़ वेरी डेंजरस। मैं तो वहाँ पे मतलब मैं तो देख नहीं सकती, द डिजीज़ इज़ सो डेंजरस रहेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, एंड विल मूव टू द जनरल सर्कुलेशन। दिस माइक्रोफाइलरी विल बी रिलीज इन टू जनरल सर्कुलेशन। तो वहाँ पे ब्लड के साथ फ्लो करेगा और नेक्स्ट साइकिल विल बी रिपीटेड, बिकॉज व्हेन another mosquito will bite to that infective human, it will take microfilary along with the blood meal, ठीक है। यही इसी का साइकिल है, यही ये सब कुछ रिपीट होता है। देखेंगे इसके पैथोजेनेसिस यही है कि ये ब्लॉकेज इट कॉज ए मैकेनिकल बैरियर, एक वाल जैसा खड़ा कर देता है सर्कुलेशन में। अगर सोचो इतने सारे माइक्रोफाइलरी होंगे और एक ही पार्ट में ब्लॉकेज नहीं कर देंगे, obviously वो it causes mechanical barrier in the circulation, and it may also cause allergic responses in the human body, so that the organ of that human body got inflamed, ठीक है। फिर हम उसे डिटेक्ट कैसे करें पहले से, तो इसका लैब डायग्नोसिस है। इसका लैब डायग्नोसिस यही है कि पहले हम उस माइक्रोफाइलरी को डिटेक्ट करें। डिटेक्शन कैन बी डॉन बाय स्टेन फिल्म, अनस्टेन फिल्म, ब्लड स्मीयर, और